Hello, dear students. I hope you all are safe and healthy. I welcome all of you to the lecture 20th of my online lecture series of object oriented programming. My name is Ankita and I am teaching as an assistant professor in Department of Computer Science and Engineering at St. Andrews Institute of Technology and Management, Gurugram. So in this video we will study pointers and declaration and initialization of pointers with pointers arithmetic. In previous video we studied object slicing, overriding member function. We also studied object composition and delegation. These are the kind of relationship a class contains. Order of execution of constructors and destructors also. So let us begin with the pointers. Pointers are the variables basically which holds the address of another variable, and you can say these are the symbolic representation of the addresses. So they have the data type like a normal variable contains. For example, if we create int a is a variable which is of integer type. Similarly, we can create integer type pointer or float type pointer or double type pointer or character type pointer. So they enable program to use call by reference. So all the dynamic functioning, like if you want to create any space dynamically, if you want to call by reference or call by pointers, everything is implemented with the help of pointers. So a computer memory always have an address. A computer memory location always have one address and also holds some content. So address is an alphanumeric number, you can say. It contains hexadecimal form basically, which is hard for programmer to use directly. So typically each address location holds the 8 bit, that is 1 byte of the data. So it is entirely depend upon the programmer to interpret the meaning of data such as integer, real number, character, strings, float, double, etc. So to ease the burden of programming using numerical addresses, the programmer interpreted data. Early programming languages introduced, like C programming, introduced the concept of variables. A variable is a named location basically that can store a value of a particular type. Instead of numerical addresses, names are attached to certain addresses. Also types like integer, double, char are associated with the content for ease of the interpretation of data. So the computer memory looks very much similar to this diagram. These are the addresses. No one knows the specific address of a certain memory location, but we can fetch that address with the help of pointers. So consider that these are the memory blocks, memory locations, and each memory location have the addresses written in front of the each location. So these are the content which this location is stored, which this location is having. Consider this sum is of 4, is of integer type basically, so it will occupy the 4 byte in the memory location. This age is of short integer, so then it will occupy 2 byte. Average double occupies 8 bytes in the memory, so it is shown by these occupancies, like ये जो ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर. ओके, सो बिसाइड्स दैट ये यहाँ पर आपका वैल्यू भी डिस्प्ले करा रहे हैं. सो द वैल्यू जो आपकी यहाँ पर वैल्यू कंटेन करता है उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कंटेन्स दिस वैल्यू. ओके, सो this is ptr sum. This is a pointer variable which is of integer type, and because it is of integer type then it will occupy 4 bytes. अगर float type का pointer बनाते हैं तो उस केस में वो 4 byte लेगा. अगर double type का pointer बनाते हैं तो 8 byte contain करेगा. Okay, so this is the allocation of the pointer variable and the other variables. So syntax of the pointer goes like this. First you have to write the data type and then the pointer name with the asterisk sign star. How to declare the pointer? There are 3 methods to declare the pointer. You can do it either in this first way, data type, then space, then star ptr. Second option is data type star, then space, then ptr. Third is data type, then space, then star, then space, then ptr. So usually this third type of declaration is used for declaring any pointer. So these are the examples: iptr, dptr, p1, p2. So you can have pointers like this. You can declare pointers like this. How to initialize the pointers? This is usually done with the help of ampersand or the address of operator. And when we declare any pointer variable, its contents are not initialized at first, or you can say it contains the address of somewhere, which is of course not a valid location. उस पॉइंट तक वो वैलिड लोकेशन नहीं रहती है जब तक हम उसे इनिशियलाइज नहीं करते. वी नीड टू इनिशियलाइज अ पॉइंटर बाय असाइनिंग इट अ वैलिड एड्रेस. सो
Normally address is represented with the help of address of operator, that is ampersand, and this operates on a variable and returns the address of that variable. Have a look at this code. Int num is equal to 56, int star p number is a pointer variable, then p number is having the value और as an address of the number, that is 56 का जो address location होगा वो इसको हम point कर रहे हैं, then in star p it is address is represented in the form of ampersand. So in the diagram you can see, so this is the pointer variable that contains memory address pointing to an int variable. So ये जो pointer variable है इसका खुद का भी कुछ address होगा, जहाँ पर भी पॉइंटर वेरिएबल, जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा था, जहाँ पर भी हमारे पॉइंटर वेरिएबल रहते हैं उनका भी एक खुद का एड्रेस होता है, जबकि इसके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो एज एन एड्रेस होता है हमारे दूसरे, लाइक अगर हमने यहाँ पर ptr सम बनाया है, पॉइंटर हमने बनाया है सम वेरिएबल के लिए, तो सी दिस के ये क्या कंटेन कर रहा है, 19 देन 000000, जो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ सम की थी वो यहाँ पर कंटेन कर रहा है. सिमिलरली द वेरिएबल विच इज विद द नेम नंबर, इट इज हैविंग द वैल्यू इन इट, एंड दिस वेरिएबल, the address of this variable is pointed by the pointer variable. The address of a variable can be obtained by preceding the name with a variable with an ampersand sign. So this statement is generally used to allocate, to assign address of a variable to the pointer. Okay, so this is the example. So consider this code. This variable is having value 25, and this FOO is basically a pointer variable which is having address of my variable, my var, and bar is again having the, see the difference, यहाँ पर हमने ampersand के साथ में इसको represent किया है और यहाँ पर हमने कोई ampersand या asterisk sign नहीं लगाया. The actual address of the variable in the memory cannot be known until the runtime, so we can assume that के कुछ address होगा उस particular location का. So consider that my variable is placed at the location 1776, 1776. So इस लोकेशन पर ही हमारा रिसाइड करता है एक टाइम के लिए, हम अज्यूम कर लेते हैं, अदरवाइज मेमोरी लोकेशन को फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है अगर हम पॉइंटर्स वगैरह यूज़ नहीं करते. पॉइंटर्स की हेल्प से हम उन्हें डिस्प्ले करा सकते हैं. येस, सो अभी इस वीडियो के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू 1776 है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव असाइन द वैल्यू 25 टू दी माई वेरिएबल. ओके, एक ऐसा वेरिएबल जिसका एड्रेस जो है वो मेमोरी में 1776 है, इस वेरिएबल का एड्रेस जो है वो 1776 है. एंड द सेकेंड स्टेटमेंट सेज दिस वन. ओके, दिस इज द statement which is initial, which is declaring the pointer variable. Then this statement assigns the FOO, the address of the my variable, which we have assumed as the 1776, and finally the last statement or the third statement assigns the value contained in the my variable to BAR. So this is the standard assignment operation as already done many times in the earlier videos also और chapters also. In dynamic memory management हमने देखा था pointers कैसे बनाते हैं. जो मेन डिफरेंस हमारे पास जो थर्ड और जो सेकंड स्टेटमेंट, यानी इस स्टेटमेंट और इसमें जो है, मैं इनके आगे नंबरिंग कर देती हूँ सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज स्टेप्स. ओके, सो द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज 2 and 3 स्टेटमेंट इज दिस एम्परसेंट साइन. यहाँ पर एम्परसेंट है, यहाँ पर एम्परसेंट नहीं है. इसका मतलब इसकी जो पॉइंटर की जो वैल्यू है वो हम असाइन कर रहे हैं BAR को, और माई वेरिएबल का जो एड्रेस है वो हम असाइन कर रहे हैं FOO को. सो यू कैन सी दिस आउटपुट. इसके आउटपुट भी देख सकते हैं, छोटा सा प्रोग्राम है ऑनलाइन एडिटर में, आप इसे रन करके देखिए. सेकेंड ऑपरेटर इज जो पॉइंटर्स में यूज़ होता है वो डी रेफरेंस ऑपरेटर होता है, जो एस्ट्रिक साइन जिसे हम बोलते हैं. सो अ वेरिएबल विच स्टोर्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड द पॉइंटर, एंड पॉइंटर्स आर सेट टू पॉइंट टू सम वेरिएबल हुज एड्रेस they store, and this is done by preceding the star operator in front of the variable, pointer variable. जैसे आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ये तो एक जनरल एग्जाम्पल है हमारा कि हम इसकी वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं a को, and this operator can be read as value pointed to by pointer. So it will define the value pointed to by the PTR. सो इन दोनों में जो डिफरेंस है, जो एम्परसेंट है उसे बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एंड दिस कैन बी रेड एज एड्रेस ऑफ, एंड स्टार इज द डी रेफरेंस ऑपरेटर बेसिकली, एंड इट कैन बी रेड एज द वैल्यू पॉइंटेड टू बाय. Thus they have sort of opposite meanings, and address obtained with ampersand can be dereferenced with the star.
So this was all about the pointer. It is very simple concept. नेक्स्ट कम्स दी पॉइंटर अरिथमेटिक. अगर पॉइंटर एक वेरिएबल है जो कि एड्रेस को रखता है तो क्या क्या अरिथमेटिक ऑपरेशन हम उस पर परफॉर्म कर सकते हैं. लाइक दीज फोर आर द इम्पॉर्टेंट arithmetic operations which we can perform on pointers. So to understand this we will have a pointer ptr जो कि integer type का होगा, जिसकी वैल्यू हम 250 कंसीडर करेंगे. एंड या फिर ये बोलेंगे ptr points to the address of 250. We will assume that 32 bit integers. So if we perform ptr plus plus, if we perform ptr plus plus, so integer type का already है, तो what will happen here? After the increment its value will become 254 from 250. 251 नहीं होगी, 254 हो जाएगी, बिकॉज एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर 4 बाइट का ही होता है. व्हेन वी विल इंक्रीमेंट दी पीटीआर तो 4 बाइट आगे इंक्रीमेंट होगा. सो इनिशियल वैल्यू वाज 250, नाउ इट विल बिकम 254. ओके, सो ये मेन चीज़ है यहाँ पर ध्यान देने की. इसका रीज़न ये है कि ईच टाइम व्हेन पीटीआर इज इंक्रीमेंटेड इट विल पॉइंट टू द नेक्स्ट इंटीजर. ओके, नेक्स्ट 4 बाइट जो होगा उसको पॉइंट करेगा. सो सेम इज ट्रू विद द डिक्रीमेंट. अगर हम पीटीआर डिक्रीमेंट करते हैं देन इट विल डिस्प्ले दी 246 वैल्यू 246. ओके, सो इनका एक एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है. सो हैव अ लुक एट दिस एग्जाम्पल. दिस इज एन एरे. और यूजुअली क्या होता है, नॉर्मल वेरिएबल को हम, नॉर्मल पॉइंटर वेरिएबल को हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं कराना चाहेंगे, बिकॉज हम पॉइंटर वेरिएबल एक लोकेशन को पॉइंट करने के लिए करते हैं. तो जब आपके पास एक ही वेरिएबल है तो आपको उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. द रीज़न फॉर यूजिंग डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट इज़ यूज्ड विद द लिस्ट और द एरे. आप जब एरे या लिस्ट वगैरह ऐसी जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें यूज़ करते हो, तब आपको पॉइंटर्स को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने की ज़रूरत होती है टू मूव योर कंट्रोल फ्रॉम वन इंडेक्स वैल्यू टू अनदर इंडेक्स वैल्यू. तो यहाँ पर एरे का ही एग्जाम्पल लिया हुआ है. 10, 20, 30, 40, 50 ये हमारे पास वैल्यू है जिसे हमने एरे को इनिशियलाइज किया है विद द डिक्लेरेशन के साथ ही जब इनिशियलाइजेशन करते हैं तो वो इस तरह से होता है. दिस इज अ पीटीआर विच इज पॉइंटिंग टू इंटीजर एंड दिस इज हैविंग एन एरे एड्रेस इन दी पॉइंटर. सो व्हाट विल हैपन हियर, हमने यहाँ पर एम्परसेंड साइन नहीं लगाया. एरे के केस में यूजुअली हम यहाँ पे एरे का नेम लिखते हैं तो उसका जो पॉइंटर जो होता है वो पूरे एरे को पॉइंट करता है, पूरे एरे के एड्रेस को पॉइंट करता है. सो ऑब्वियसली टू एक्सेस दी एरे वी हैव टू यूज फॉर लूप. सो इट विल एक्सेस दी एड्रेस एंड वैल्यू ऑफ ईच लोकेशन ऑफ दी ईच आइटम और एलिमेंट ऑफ दी एरे. सो यहाँ पर ये एरे और ये डिस्प्ले कराता चला जाए. ओके, सो व्हाट इट विल डिस्प्ले, फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेस ऑफ ith 0th पॉइंट, बिकॉज आई की वैल्यू 0 थी यहाँ पर. देन उसके बाद ये सबस्क्रिप्ट जो आपकी इंडेक्स ब्रैकेट होती है वो, देन पीटीआर की वैल्यू, इट विल शो दी एड्रेस, देन पीटीआर इट विल शो दी एड्रेस, देन वैल्यू ऑफ वेरिएबल, देन आई 0th वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो स्टार पीटीआर, इट विल शो दी वैल्यू. सो अगर आपको पॉइंटर की वैल्यू डिस्प्ले करानी है इट विल यूज दी स्टार एस्ट्रिक साइन और डी रेफरेंस ऑपरेटर. अगर आपको इसका एड्रेस शो करना है तो आप इसको नॉर्मली यहाँ पर लिखेंगे. ओके, बिकॉज पीटीआर के पास एड्रेस ऑफ वेरिएबल है ना, तो इसीलिए आप पीटीआर में जो है सिंपल अगर लिखते हो तो ऑब्वियसली ये वैल्यू, इसकी वैल्यू ही दूसरे का एड्रेस है तो इट विल शो दी एड्रेस. डिक्रीमेंट करने के केस में भी इसी तरह से होगा. आप यहाँ पर लूप को वापस रिवर्स ऑर्डर में चला रहे हैं. दिस इज द वे टू इनिशियलाइज दी और डिक्लेयर दी एरे एंड दिस इज द एड्रेस ऑफ द लास्ट एलिमेंट जो आपने पॉइंटर को अलोकेट कराया है. इन दोनों एग्जाम्पल्स को आप रन करके एडिटर में देख सकते हैं व्हाट विल बी द आउटपुट. पॉइंटर कंपैरिजन ऑल्सो इक्वल टू हम कर सकते हैं ग्रेटर देन एंड लेस देन. इन जनरली फॉर द आउटकम ऑफ द पॉइंटर कंपैरिजन टू बी मीनिंगफुल, टू पॉइंटर्स मस्ट हैव द सेम रिलेशनशिप विद ईच अदर. जो अगर इंटीजर टाइप के एक पॉइंटर है तो दूसरा जिसे हम कंपेयर करेंगे वो भी इंटीजर टाइप का होना चाहिए. ओके, सेम एरे साइज यूजुअली इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन, ये और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वी विल परफॉर्म ऑन एरेज रादर देन दी small normal variables. So one type of pointer comparison is to compare pointer to the null pointer which is 0, and if ptr1 and ptr2 points to variable that are related to each other such as elements of the same array, then ptr and ptr1 and ptr2 can be meaningfully compared. So this is the following program in which I have implemented the comparison of pointer
वेरिएबल्स इन एरेज। सो यहाँ पर हमारे पास एरर है, यहाँ पर एक पॉइंटर बनाया है, पॉइंटर इज हैविंग द इनिशियल लोकेशन, इनिशियल एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, देन आई इज इक्वल टू 0। ये कंपेयर कर रहा है इफ PTR इज लेस देन इक्वल टू एड्रेस ऑफ VAR 4, तो फोर्थ जो इंडेक्स है उसका जो एड्रेस है उसकी वैल्यू से अगर हमारा PTR स्मॉल है, इक्वल टू है, तो इट विल शो द एड्रेस एंड द वैल्यू। ओके, तो और वो एड्रेस और वैल्यू ये लूप की हेल्प से डिस्प्ले कराएगा। वही सेम फॉर्मेट जो हमने पहले किया था, हमें डिस्प्ले कराना है तो फॉर एड्रेस हम ये वाली स्टेटमेंट लिखेंगे, टू शो दी वैल्यू वी विल राइट दिस स्टेटमेंट, एंड बाय इंक्रीमेंटिंग द PTR लोकेशन साइमल्टेनियसली इट विल शो यू ऑल दी एड्रेसेस ऑफ द एरे साइमल्टेनियस। तो अब यहाँ पर क्या करें, कंपेयर, जब तक कि हमारा जो वैल्यू है वो PTR लेस देन इक्वल टू VAR 4 रहती है, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक हमारा सारा वो चलेगा, तो उसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ को रन करके बाहर आएगा। ओके, सो वी आर नॉट लिमिटेड टू ओनली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशंस, वी कैन ऑल्सो ऐड और सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स टू और फ्रॉम दी पॉइंटर्स। लाइक अगर हम PTR 1 प्लस PTR कोई वेरिएबल आप समझिए, उसमें कोई वैल्यू, कोई इंटीजर, कोई नंबर आपको ऐड कराना तो हम यही सिमिलरली इस तरह से भी करा सकते हैं। दिस इज द अनदर एग्जाम्पल फॉर मेन्यू फॉर दिस इज द अनदर एग्जाम्पल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द कंपैरिजन, पॉइंटर कंपैरिजन। जैसे हमने यहाँ पर इसको फोर्थ इंडेक्स के साथ में कंपेयर करके लिखा है, उसी तरह से यहाँ पर ये मैक्स -1, तो मैक्स -1 यानी कि 2 तक, तो 0 से लेकर के आप जब आप 0 से लेकर के जब आप 3 तक जाएंगे तो लेस देन तक हम यहाँ पर कंपेयर करा रहे हैं। तो एक सर्टेन इंडेक्स तक जब हम यहाँ पर कंपैरिजन करा रहे हैं तो हम इस तरह से कंपैरिजन भी पॉइंटर्स के ऊपर करा सकते हैं। सेम एग्जाम्पल है बट थोड़ा अलग वैल्यूज़ के साथ में है। Yes, we can use pointers with the array. While handling arrays with the pointers, we need to take care of the few things. Like first important thing that we should note regarding arrays is that array name alone represents the base address of the array. So while assigning the address of array to the pointer, don't use a % sign. तो ये हमने ऊपर भी देखा है इन एग्जाम्पल्स में, जब हम पूरे array के एड्रेस को हम पॉइंटर पे असाइन करा रहे हैं तो हमने % यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। तो array के केस में जब हम पॉइंटर को असाइन कराना चाहें तो हमें जो है डायरेक्ट ये स्टेटमेंट लिखनी होती है। ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, इसको यहाँ से हटा के हम यहाँ पर लिखें, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सो हाउ टू वी कैन ट्रैवर्स थ्रू द एरे यूजिंग पॉइंटर्स। दिस इज अ पॉइंटर डिक्लेरेशन, दिस इज द एरे डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन, दिस इज द असाइनमेंट ऑफ द पॉइंटर। सिंपल, जब आप एरे को रन करवा रहे हैं, आप उसके एरे की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करा रहे हैं, फॉर लूप लेंगे, 0 से लेकर 6 तक हमने इसे चलाया है। ओके, बिकॉज वी हैव 6 लोकेशंस हियर, तो लेस देन 6 तक 0 to 5 6 वैल्यूज, 6 इंडेक्स वैल्यूज़ हो जाएंगी, और PP और P++। तो सिमिलरली जैसे ऊपर एग्जाम्पल हमने देखा था उसी तरह से एग्जाम्पल है यहाँ पर ये। नेक्स्ट टॉपिक इज डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट इन C++ और C। सो डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट या एलोकेशन करने का क्या यूज़ होता है। वन यूज़ ऑफ डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी इज टू एलोकेट मेमोरी ऑफ द वेरिएबल साइज विच इज़ नॉट पॉसिबल विद द कंपाइलर एलोकेटेड मेमोरी एक्सेप्ट द वेरिएबल लेंथ एरे। सो वेरिएबल लेंथ एरे के केस में आप डायनामिकली असाइन कर सकते हो कंपाइल टाइम पर, आप उस टाइम पे जाकर चेंज कर सकते हो। अगर इनिशियली एरे आपने 5 लिया, लेटर और आपको लगा 6 चाहिए, तो आप 6 वहाँ पर जाकर मैनुअली चेंज कर सकते हो। बट आपको जब आप रन टाइम पर ही वेरिएबल साइज की वैल्यूज़ को अलोकेट कराना चाहते हो तो आप उस केस में डायनामिकली उन्हें करोगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इज फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइडेड टू द प्रोग्रामर। वी आर फ्री टू एलोकेट और डी एलोकेट मेमोरी वेन एवर वी नीड एंड वेन एवर वी डोंट नीड एनी मोर। ओके, सो बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक लिंक लिस्ट, ट्रीज, जिनके केसेस में आप फ्लेक्सिबिलिटी आपको चाहिए होती है। you want the flexibility in terms of writing the program. So for those purposes you use the dynamic memory management. C usually used malloc, calloc, free, realloc functions, but C++ में हमारे पास new और delete operator use होते हैं. So the syntax to create the new variable, new memory location for the some data type, so we have to write the pointer. That is always done with the help of pointer. तो यहाँ पर pointer variable सबसे पहले लिखेंगे, then new keyword and then data type. किस टाइप के डेटा के लिए आप new allocate कराना चाहते हैं pointer की हेल्प से. Okay, so int, this is the initial declaration of the pointer जिसे आपने null assign किया है, and जब आप इसको, because
अगर हम न्यू की हेल्प से मेमोरी एलोकेट कराना चाहते हैं तो बिफोर दैट वी हैव टू क्रिएट द पॉइंटर. हम पॉइंटर करेंगे नल एलोकेट एंड देन नल क्रिएट करेंगे हम पॉइंटर एंड देन वी विल एलोकेट इट विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड फॉर इंटीजर टाइप का यहाँ पर होगा. असाइनमेंट के लिए हम इस तरह से भी कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं डिक्लेरेशन को और उनके असाइनमेंट्स को. तो जिस तरह से क्रिएट किया हमने डिक्लेयर किया उसी तरह से उसे असाइन भी कर दो कि इंटीजर टाइप के वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर की वैल्यू को क्रिएट करने के लिए बनाया है. सो टू इनिशियलाइज मेमोरी, जैसे ही हम न्यू यूज़ करते हैं और साथ ही साथ इनिशियलाइज अगर हम करना चाहें तो वी विल राइट 25 एंड जो ब्रैकेट में जो भी वैल्यू हमें असाइन करानी है वो हम ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देंगे. अगर हमें न्यू ऑपरेटर यूज़ करना है टू एलोकेट ब्लॉक ऑफ एन एरे और ऑफ द मेमोरी, एरे के लिए करना है तो हम इस तरह से इंडेक्स ब्रैकेट यहाँ पर मेंशन करेंगे एंड देन वी हैव टू गिव द साइज ऑफ द एरे फॉर विच वी वांट टू क्रिएट द स्पेस. और जो न्यू और डिलीट की और डायनामिकली आप बोल सकते हैं जो भी लोकेशन आपको क्रिएट करनी होती है दैट इज़ डन इन दी हीप सेक्शन ऑफ द मेमोरी. इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर हमने जैसे एरे के लिए बनाया है. तो सिंस दी प्रोग्रामर इट्स प्रोग्रामर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डी एलोकेट डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी, सो उसके लिए हमें फ्री भी यूज़ किया जाना चाहिए और डिलीट आप कह सकते हो C++ में. तो उसका सिंपल एग्जाम्पल ये होता है डिलीट क्यू एंड डिलीट पी. जो भी पॉइंटर आपने यूज़ किया है न्यू यूज़ करने के लिए उस तरह से आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं. So this was all about the dynamic memory management that which is done with the help of new and delete operators. ये हम previous video में भी देख चुके हैं how to create memory with the उसमें detailed example add किए हुए हैं मैंने. So this was all about for this video. We will see next topic in next video. Thank you.